Yeah, good evening, everyone. It's a joy to be together in God's presence this evening. सबको शुभ संध्या। ये खुशी की बात है कि फिर एक बार परमेश्वर के सानिध्य में और आप सभी के साथ ये समय मिला। And just as we were reminded through the song that God is with us, even though we walk through the valley of the shadow of death, even though we go through difficulties. और जैसे हमने अभी जो गाना गाया उसमें लिखा था कि परमेश्वर हमारे साथ है, चाहे हम घोर अंधकार से और मृत्यु की खाई से क्यों न चल रहे हों। Yeah. Now today our subject is emotional triggers. और आज का हमारा जो विषय है वो है भावनात्मक उत्प्रेरता। Now this is a definition that psychologists have given for emotional triggers. और जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने ये जो भावनात्मक उत्प्रेरक है उसकी जो परिभाषा जो दी है, They say that it is anything which could be memories or experiences or events और वो कहते हैं कि ये इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि हमारी कुछ यादें हैं या फिर कुछ घटनाएं घटी है या फिर हमारी उससे जुड़ी हुई कुछ भावनाएं हैं that sparks anything which sparks an intense emotional reaction. और जिनकी वजह से हमारा जो प्रतिसाद जो होता है उसके प्रति एक उत्प्रेरक की तरह होता है जो भावनात्मक होता है। Yeah. So bad things or unpleasant things happen to everybody all the time. और जैसे कि बुरी चीज़ें या फिर जो चीज़ों से हमें आनंद नहीं मिलता है, ऐसी चीज़ें हम सभी के साथ कई बार होती है। But we call something a trigger if the response that the person gives is disproportionate. I mean, little bad thing happened and the person is reacting too much. परंतु हम उसे उत्प्रेरक तभी कहते हैं जब हमारा प्रतिसाद, जो चीज़ हमारे साथ हुई है, जो प्रतिसाद होता है वो कई गुना ज़्यादा होता है। मानो कि इतनी छोटी चीज़ हमसे हमारे साथ हुई और उसका प्रतिसाद जो है वो उससे कई गुना ज़्यादा हम देते हैं। Let us consider an example. जैसे उदाहरण के तौर पे Suppose there was a little girl and her parents used to go for work. They used to be away at the office, and she used to wait for them to come home, and they used to get late and she used to get very scared. मानो एक कोई छोटी बच्ची है और उसके माता पिता जो है वो काम के लिए बाहर जाते थे और वो उनकी राह देखती थी और काफ़ी देर बाद वो वापस आते थे। And maybe one such day something bad happened. Maybe somebody came and molested her when she was alone, or somebody came and robbed the house when she was alone. So some bad experience also happened. और ऐसे कुछ हुआ शायद कि किसी एक दिन जो है वो उसके साथ बुरा कुछ हुआ, किसी ने आके घर से कुछ चुरा लिया या उसके साथ कुछ गैर बर्ताव किया, ऐसे कुछ हुआ। And now suppose she is grown up and she is married. और मानो अभी की वो बच्ची जो है वो अभी बड़ी हो गई है और उसकी शादी भी हो चुकी है। And her husband tells her that I'll be returning from work at 7 o'clock. और उसका पति जो है वो एक दिन उसे बताता है कि मैं काम से शाम को 7 बजे तक वापस आ जाऊंगा। And then he reaches home at 8 o'clock. और वो 7 की बजाय 8 बजे पहुंचता है। And he does not think it's a very big thing. और वो नहीं मानता है कि 1 घंटा देरी इतना बड़ा कुछ है। There was something at office just at the moment he was supposed to leave. Something happened in office, so he had to spend a little extra time there. और जैसे कि 7 बजे जब वो निकल रहा था तो अचानक से कुछ काम आया जिसकी वजह से उसे थोड़ी देर और रुकना पड़ा और 1 घंटा उसमें चला गया। Yeah, and maybe traffic also was there, and so he got a little late. और हो सकता है कि शायद ट्रैफिक भी थोड़ा ज़्यादा था, इसकी वजह से भी और ज़्यादा, तो 1 घंटा लेट हो गया। But she is very angry and very upset that you said you would come at 7 o'clock and I was waiting, and then now you're turning up at 8 o'clock.
परंतु वो जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा उसे बुरा लगा इस बात का, और वो 1 घंटे की देरी जो है वो उसके लिए काफ़ी जो भारी पड़ी। So the response or the level of anger or the level of distress that she's showing is too much compared to the actual event. और जिस प्रकार का गुस्सा या फिर जिस प्रकार की निराशा उसने जताई, वो जो 1 घंटे की जो देरी का जो किस्सा था उसके तुलना में कई गुना ज़्यादा वो प्रतिशत था। Now there is a reason for it, and that is her past experience. और इसके पीछे भी, उसके इस प्रकार के बर्ताव के पीछे भी कारण है, और जो उसके भूतकाल में जो उसके साथ हुआ था वो कारण है। Now these kind of responses can be made even worse in a current situation like this, when we are all locked up in our homes and we are not able to go out and interact with others. और इस प्रकार के प्रतिसाद जो है वो और भी बुरे हो सकते हैं, खासतौर अभी के जो माहौल है जहाँ पे हम सभी अपने घरों में फंसे हुए हैं और बाहर नहीं जा सकते, दूसरों से मिल नहीं सकते। Yeah. So these triggers may be different for different people. और ये जो उत्प्रेरक हैं वो अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए। Maybe there is something which really hurts you or irritates you or makes you upset. और हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं वो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा उससे आप अपसेट होते हो या फिर गुस्सा आता है। Then this principle is also there, that as human beings, God has made us to be against sin. और ये भी एक सिद्धांत है कि एक मनुष्य होने के नाते परमेश्वर ने हमें पाप के विरुद्ध बनाया हुआ है। Now, so we are supposed to feel very angry or very upset at sin. तो इसीलिए पाप के बारे में हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा या फिर हम पाप को पसंद नहीं करने वाले होने चाहिए। But because of our sinful nature, we are not so angry at most of the sins. परंतु जो कि हम स्वाभाविक रूप से पापी हैं, तो काफ़ी तौर पे हम जो है वो पाप से उतना गुस्सा नहीं दर्शाते जितना होना चाहिए हमें। So, for example, suppose my weakness is lust. और उदाहरण के तौर पे मेरी कमज़ोरी मानो लत है। So I don't feel so outraged when I come to know that there is pornography or there is immorality going on and so on. तो इसीलिए मैं उतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करता हूँ जब मैं देखता हूँ कि व्यभिचार हैं हर जगह पे या फिर गलत चीज़ें जो है वो हो रही है आसपास। But I feel very bad if the poor people are cheated. परंतु जब कोई किसी गरीब के साथ जिस प्रकार से बर्ताव होता है उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। And I'm emotionally weak, so that anger or that distress goes out of control. और जो कि मैं भावनात्मक रूप से कमज़ोर हूँ, तो मेरा गुस्सा जो है या फिर जो मेरा प्रतिसाद है वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। So all these things are emotional triggers. तो ये सारी चीज़ें जो है वो भावनात्मक रूप से उत्प्रेरक बनती है। Yeah. Now, there is no need to feel guilty if you are triggered by something. तो यहाँ पे हमें जो है वो अपने आप को दोषी मानने की ज़रूरत नहीं है अगर कोई उत्प्रेरक हमें महसूस करते हैं अपने अंदर। Because this is a fallen world, it's a sinful world, and there is a lot of hurt. There are many things that hurt us, and even we hurt other people. और वो इसलिए है क्योंकि जो संसार जिसमें हम आज रहते हैं वो जो है वो पतन पाया हुआ संसार है, और कई सारी चीज़ें हैं जो जिससे हमें एक दूसरे को ठेस पहुंचाते हैं। Yeah, but it is also true that this way of reacting is not how God wants us to behave. और परंतु साथ में ये भी बात सही है कि जिस प्रकार से हम प्रतिसाद देते हैं वो तरीका परमेश्वर के नज़र में सही नहीं है। The Bible says that self-control is one of the qualities which make up the fruit of the Holy Spirit. और जैसे हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा के फलों में से एक फल ये भी है जो खुद के ऊपर संयम होना। Yeah. Then the Bible says, let your speech always be seasoned with grace. और वचन हमें ये भी बताता है कि जो भी बात करें हम जो है वो दूसरों के लिए, उनकी भलाई के लिए हो। Yeah. Therefore, if we have this problem, we can expect God's help in overcoming.
तो इसीलिए अगर ये समस्या हमारे अंदर है तो हम परमेश्वर की मदद ले सकते हैं उस पे विजय पाने के लिए। Now, if you look at the example of the Lord Jesus Christ, there were certain occasions on which he got very angry. अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो कुछ ऐसे घटना हुई जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह काफ़ी गुस्सा हुए, But they were not directly related to his person. परंतु वो चीज़ें जो है वो उन्हें व्यक्तिगत रूप से उनसे जुड़ी हुई नहीं थी। The wife got angry because her husband came late from office. जैसे उदाहरण में हमने देखा कि पत्नी इसीलिए गुस्सा हुई क्योंकि उसके पति जो है वो देर से आए ऑफिस से। The Lord Jesus got angry because people were selling animals in the temple. प्रभु यीशु मसीह इसलिए गुस्सा हुए क्योंकि वो लोग जो है वो मंदिर में व्यापार कर रहे थे। You see the difference. और ये दो उदाहरण में भेद है। Yeah, and another thing is the Lord Jesus never went out of control. और दूसरी बात ये भी है कि मसीह जो है वो कभी भी उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। Yeah, so that is how the ideal man is supposed to be. You see the way the Lord Jesus lived, that is how he wants us also to behave. और उस प्रकार से मसीह की जैसे जो है वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो है वो एक मनुष्य होना चाहिए। Yeah. Now, there are some people who may be having a clinical problem. That is, there is something wrong inside their brain or their hormones or something like that. और कुछ लोग हो सकते हैं जिनके अंदर जो है वो मनोरोगी या फिर कोई चिकित्सक परेशानी हो सकती है, जैसे उनके जो भेजा है उसमें कुछ केमिकल्स का या फिर कुछ हार्मोन्स जो है उनमें कम ज़्यादा हुआ सकता है। Yeah. Now that may require medication and that may require the services of a psychiatrist. और उन चीज़ों के लिए यकीनन जो है वो हमें वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जो है वो उनकी मदद लेना ज़रूरी है। But most of us are not in that category. Most of us are okay inside our brain. It is just that certain things make us upset. और म्यूट हो गया। सॉरी, ये जो बात है वो कुछ ही लोगों के लिए लागू होती है और आम तौर पे हमारा जो दिमाग जो है वो सही तरह से होता है। And so our problem is only with dealing with the circumstances in our life. तो इसीलिए हमारी समस्या केवल मुख्य तौर पे यही होती है कि जो हमारे जीवन में जो परिस्थिति है किस प्रकार से उस परिस्थिति को हमें संभालना है। Now for the next few minutes, I want to give us some guidelines from the Bible as to how to cultivate our emotional health. कुछ आने वाले कुछ मिनटों में हम देखेंगे पवित्र शास्त्र से कि किस प्रकार से हम भावनात्मक रूप से स्वास्थ्य पा सकते हैं। We'll read from Acts chapter 20. We'll read verses 13 and 14. प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 13 और 14 वचन हम पढ़ेंगे। हम पहले से जहाज पर चढ़कर अस्सुस को इस विचार से आगे गए कि वहां से हम पौलुस को चढ़ा ले, क्योंकि उनने यह इसलिए ठहराया था कि आप ही पैदल जाने वाला था। जब वह अस्सुस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मितुलेने में आए। So Paul and many others were together on a journey. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस और उनके साथ कई सारे जो है वो एक जर्नी पे निकल चुके थे। But for some time, Paul planned it in this way that he would be alone and then later he would rejoin the others. और थोड़ी देर के लिए पौलुस ने ये तय किया कि वो अकेले कुछ सफर करेंगे और बाद में बाकी लोग जो है वो उनसे जुड़ जाएंगे। So this is our first principle. We need to learn to spend time alone. तो यहाँ पे सबसे पहला सिद्धांत ये है कि कुछ समय हमें अकेले बिताना है। Moses was 40 years alone in the desert. जैसे मूसा जो है वो 40 साल तक जो है वो अकेले रहा था। Okay, if you look at the lives of Elijah, John the Baptist, they also spent a lot of time alone. और उसी प्रकार से बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना या फिर एलिया का अगर जीवन देखेंगे तो वो भी उनका भी जीवन में कई सारा हिस्सा उन्होंने अकेले बिताया।
Okay, so all of us need to spend time just by ourselves and in our own thoughts. तो इसीलिए हमें भी हम सभी को कुछ समय जो है वो अकेले बिताना है And think about your life. और विचार करना है हमारे जीवन के बारे में। What do I stand for? मैं किन चीज़ों के लिए कौन सी चीज़ें मुझे मायने रखती है, What do I believe? मैं किन चीज़ों के ऊपर विश्वास करता हूँ, Why am I living? मैं क्यों जिंदा हूँ। This question comes up. Why should I get out of my bed every day in the morning? What is motivating me? और ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हर दिन सुबह मैं उठता हूँ और मेरे बिस्तर से नीचे उतरता हूँ। And what do I hope to accomplish in my life? मेरे जीवन के द्वारा मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ। Okay. Now, a human being needs to have some satisfaction about where he is in his life today. और एक मनुष्य होने के नाते हमें वो समाधान पाने की ज़रूरत है जहाँ पे आज हम खड़े हैं। That satisfaction will come if we are walking in God's ways. और वो समाधान तभी आएगा जब हम परमेश्वर की राह के अनुसार चल रहे हैं। And a human being needs something which is bigger than himself, something bigger, a big goal to go towards. और मनुष्य को कुछ ऐसा ध्येय हमेशा चाहिए होता है जिसे वो हासिल करना चाहता है, लेकिन वो उससे कई गुना ज़्यादा बढ़कर है। And God can only be that goal. और केवल परमेश्वर ही है जो ये संभव कर सकता है। But we need to spend time with ourselves and think about what we are doing, why we are doing, and where we are going. तो इसलिए हमें जो है वो अकेले सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं। Yeah. Now let us read Psalm 8 and verses 3 and 4. अभी पढ़ेंगे हम भजन संहिता 8 उसका 3 और 4। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तरांगन जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। Yeah. Now, being reminded about how vast the universe is very good for our emotional health. और जब हम स्मरण करते हैं, अपने आप को स्मरण दिलाते हैं कि ये संसार कितना महान और कितना बड़ा है, तो ये अच्छी बात है हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए। Our problems look big to us. हमारी समस्या जो है वो हमें बहुत बड़ी लगती है। Yeah, but just wait till you see how big the stars are, how big the galaxies are. लेकिन तभी तक जब तक हम अपना ध्यान जो है वो इस संसार के ऊपर और ये गैलेक्सी या फिर ये तारे, ये सारा संसार जब देखते हैं उसकी तुलना में, तब जब तक हम उनसे अपनी तुलना नहीं करते। Yes, so God is controlling all that, isn't it? So that reminds us that God is in control and my problems are small in the sight of God. और हम ये भी जानते हैं कि ये सारा भूमंडल जो है वो, आकाश जो है वो परमेश्वर नियंत्रित करते हैं, और अगर वो इतना सब कर सकते हैं तो मेरी समस्या उनके लिए बहुत ही छोटी है। When God created man, he put him in a garden. जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने उसे एक बगीचे में रखा। So we are living in a city, but you need to make some effort to be, or at least spend some time in nature. और भले ही हम शहर में रह रहे हो, लेकिन हमें प्रयास करना है कुछ समय ही सही हम जो है वो खुले निसर्ग में जो है वो बिता सके। I am thankful that I have a window, and this window looks out towards the mountain. Actually, this is the starting of that, this Borivali, the Sanjay Gandhi National Park. And there are a lot of birds out here, a lot of trees are there. Sometimes we see, even eagles flying in the sky. These are all reminders of God's presence and God's control. और मैं अपने आप को परमेश्वर की दया से परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब मैं खिड़की खोलता हूँ तो बाहर मैं पर्वत देखता हूँ और बहुत सारे पेड़ पौधे और पक्षी देखता हूँ, और कई बार गरुड़ जो है वो आकाश में उड़ते हुए देखते हैं। तो इनसे वापस स्मरण आता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने संसार को बनाया है। Yeah.
So try to take the time to spend some time looking at nature or in the presence of nature. तो इसीलिए कोशिश करें कि कुछ समय ही सही हम जो है वो निसर्ग की तरफ देखें या फिर उसमें समय बिता पाए। We all watch videos on YouTube. Learn something about God's creation, on YouTube. और हम YouTube में कई सारे वीडियोस देखते हैं, तो हम कुछ समय जो है वो उनमें से परमेश्वर ने किस प्रकार से ये सृष्टि बनाई उसके बारे में भी हम देख सकते हैं। When God appeared to Job and his friends, they were all arguing, and Job had a lot of troubles in his life. और जब परमेश्वर ने दर्शन दिया अय्यूब और उसके दोस्तों को, और जब अय्यूब जो है वो कई सारी समस्याओं से जूझ रहा था उस समय, and then God asked Job many questions. All the questions were about God's creation. और तब परमेश्वर ने अय्यूब को कई सारे सवाल पूछे, और सारे सवाल जो है वो उसकी संसार की जो रचना उसने की थी उस बारे में थे। So from all this we understand that nature is good for our emotional health. God only has made it. तो इसीलिए इन सब से हमें यही पता चलता है कि निसर्ग जो है वो हमारी भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने इसे बनाया है। If a person is all the time playing video games, he is all the time in an artificial environment. अगर कोई व्यक्ति जो है वो लगातार जो है वो केवल वीडियो गेम्स ही खेल रहा है, तो वो एक ऐसे माहौल में जी रहा है जो वास्तव में है नहीं। And that is likely to make the person more susceptible to emotional triggers. और ऐसे माहौल में जो व्यक्ति ज़्यादा समय बिताता है तो उसे भावनात्मक उत्प्रेरक आने की ज़्यादा संभावना है। Now let us read Psalm 63 verse 6. भजन संहिता 63 का 6 पढ़ते हैं। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। Yeah. See, sometimes we are not able to sleep properly. कई बार जो है वो हम ठीक से सो नहीं पाते। And this psalmist, when he was lying down on his bed, he was thinking about God. और ये जो भजन जिसने लिखा है वो जब बिछौने पे पड़ा था तो परमेश्वर को स्मरण कर रहा था। And that refreshed his soul. और उसकी वजह से उसे ताजगी मिली आत्मिक रूप से। Yeah. Let us also read Isaiah chapter 40 and verse 31. यशायाह 40 का 31 पढ़ते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। Yeah. So sometimes, there are so many things calling for our attention, so we feel very drained out and very weak. कई बार जो है वो कई सारी चीज़ें जो है वो हमारा ध्यान उन्हें देने की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हम मानसिक रूप से तनाव महसूस करते हैं और बिल्कुल भी हम थका हुआ महसूस करते हैं। Now, before this meeting, I had 3 lectures. I teach students. इस मीटिंग के पहले मुझे 3 लेक्चर्स थे। आप जानते हैं जैसे मैं पढ़ाता हूँ छात्रों को। Now, after this meeting, there is going to be one parent-teachers meeting where I will speak briefly. और इस मीटिंग के बाद मेरी जो है वो जो छात्र है उनके माता पिताओं के साथ मीटिंग होगी, वहाँ पे भी थोड़ा देर मुझे बोलना है। And for some time, I need to be online, and if students have doubts, they will come on Zoom and they will ask me. और उसके बाद कुछ समय मुझे ऑनलाइन ही रहना है, क्योंकि छात्रों को अगर कुछ शंकाएं हैं तो वो आकर मुझसे पूछ सकते हैं। Now, when all these kind of things are pressing upon us, sometimes we feel that we need some space and we need to be away from all this. तो जब ऐसे हर जगह से जो है वो काम से जब हम दब जाते हैं तो हम जो है वो महसूस करते हैं कि इन सब से कहीं दूर चला जाए। So sometimes in the middle of a busy day, if I'm having my quiet time, I'm spending some time with God. तो इसीलिए जब समय इस प्रकार से बहुत सारा काम सर पे हो और उसके बीच में अगर मैं परमेश्वर के साथ मेरा अपना समय बिताना चाहता हूँ, then I feel that all these things are going far away, and I'm having some connection with God, and God is giving me energy. God is giving me some strength, to collect myself together and handle the day.
और जब मैं वो समय परमेश्वर के साथ अकेले में बिताता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि इन सारी चीज़ों के बावजूद परमेश्वर जो है वो ये सारी चीज़ें मुझसे दूर कर रहे हैं और मुझे जो है वो ताजगी दे रहे हैं, जिससे मेरी थकान जो है वो गायब हो जाती है। So, if we spend time with God regularly, we become emotionally strong and we will not be so susceptible to our emotional triggers. तो इसीलिए अगर हम लगातार जो है वो आदत की तौर पे परमेश्वर के साथ समय बिताएं तो हम भावनात्मक रूप से जो है वो हम कमज़ोर नहीं होंगे और ये उत्प्रेरक जो है वो इसके शिकार भी नहीं होंगे। Yeah. Then let us read Judges chapter 14 and verses 5 and 6. न्यायों का 14 उसका 5 और 6 पढ़ेंगे। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने माता व पिता को न बतलाया। Yeah. So Samson was traveling with his parents from Israel to the land of the Philistines. और यहाँ पे शिमशोन जो है वो अपने माता पिताओं के साथ इज़राइल से जो है वो फिलिस्तीन को जा रहा था। There was a girl he wanted to marry, so they were going to see her. और जो लड़की से वो शादी करने जा रहा था उसे वो मिलने जा रहे थे। So maybe there was some distance between him and his parents. Maybe he was walking ahead and maybe his parents were behind. और हो सकता है कि उसके और उसके माता पिता के बीच में कुछ जब प्रवास कर रहे थे तो कुछ दूरी थी। And a lion attacked him and he was strong, so he was able to kill the lion, but he did not tell his parents. और फिर उस दौरान जो है वो एक सिंह ने उसके ऊपर हमला किया और जो कि वो इतना बलवान था कि उसने उस सिंह को जो है वो मार डाला, लेकिन उसने अपने माता पिता से ये बात नहीं कही। Yeah, so like I remember when I was young, I used to come back home from school. When I was in 11th and 12th standard, I used to come back home from school. और मुझे याद है कि जब मैं छोटा था मतलब 11-12वीं में था तब मैं जब वापस आता था घर पे And my parents would ask, okay, how was the school or how was the day or something like that. और फिर माता पिता पूछे जाए कि कैसा था तुम्हारा आज का दिन, इस प्रकार से। So I used to just say, yeah, it was fine. I never felt free to say any more details. और मैं केवल यही कहता था कि हाँ अच्छा था, और बहुत ज़्यादा उसका विवरण करने में मुझे उतना उतना नहीं मैं कर पाता था विवरण। Now read verse 16, same chapter, Judges 14, verse 16. आगे पढ़ते हैं न्यायियों का 14 का 16। तब शिमशोन की पत्नी यह कहकर उससे सामने रोने लगी कि तू तो मुझसे प्रेम नहीं बैर ही रखता है कि तूने एक पहेली मेरी जाति के लोगों से तो कही है, परंतु मुझे उसका अर्थ भी नहीं बताया। उसने कहा, मैंने उसे अपनी माता व पिता को भी नहीं बताया, फिर क्या मैं तुझको बता दूं? So there was some secret which his wife expected him to tell her. और यहाँ पे जो है वो कुछ गुप्त बात थी जो उसकी पत्नी चाहती थी कि वो उसे बताए। Now he said, I didn't tell this even to my parents, so how do you expect me to tell you? और शिमशोन कहता है कि मैंने वो बात तो मेरे माता पिता को तक नहीं बताई, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? So what I'm trying to show here is that he was not keeping a close communication with his parents, and the same lifestyle or the same habit he now continues with his wife after he has got married. और यहाँ पे यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शिमशोन ने अपने माता पिता के साथ जो है वो जो संवाद था उतना खुला नहीं था उसका स्वभाव से, और यही बात उसने अपने पत्नी के साथ भी की जहाँ पे उसने उसे वो चीज़, हर एक चीज़ वो उसने नहीं बताई थी। Now God has made family, God has made relationships. परमेश्वर ने जो है वो परिवार बनाया और रिश्ते भी परमेश्वर ने बनाए। Which means for our emotional health, we need to cultivate our family relationships. इसका मतलब ये है कि हमारी भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए हमारे जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनके ऊपर हमें काम करना है। Try to cultivate a good relationship with your parents or with your siblings. हमारे माता पिता या फिर हमारे जो भाई बहन हैं उनके साथ हम कोशिश करेंगे कि हमारा रिश्ता जो है वो सुधारे। And tomorrow it will be helpful, when you're married,
to have a good relationship with your spouse. और आगे चल के जब आप शादी करेंगे तो आपकी सहचारी के साथ भी अच्छा रिश्ता बनाने के लिए ये बात आपको काम आएगी। So my wife and I, before the pandemic, we used to go out for dinner sometimes. और जैसे ये महामारी के पहले मैं और मेरी पत्नी कई बार जो है वो बाहर खाना खाने जाते थे। And in the restaurant, you see a lot of other couples are also sitting. और जहाँ पे रेस्टोरेंट में हम देखते हैं कि बाकी भी जोड़े जो है वो आते हैं वहाँ पे। And the man and the woman, each of them is on their cell phone. और वो आदमी और वो औरत दोनों के पास अपना अपना मोबाइल होता है और वो दोनों अपने अपने मोबाइल में खो गए होते हैं। Yeah, so they are coming to spend time, but they hardly have anything to talk with each other. और हालांकि वो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए वहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनके पास बहुत कम चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से वो बात कर सकते हैं। And that's not good for emotional health. और ये बात भावनात्मक रूप से स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। A person who is disconnected in this way will easily get triggered. और एक व्यक्ति जो इस हद तक जो है वो दूसरे से दूर है तो वो भावनात्मक उत्प्रेरक का शिकार जरूर बन सकता है। Yeah, it's also a good thing to cultivate relationships with a few important or close friends. उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि ये जो रिश्ता है हम विकसित करें, सुधारें कुछ गिने चुने बहुत ही करीबी दोस्तों के साथ। We have all started using Zoom, and I think most of us are using it for official purposes or for church meetings. और जैसे हम जानते हैं कि आजकल हर एक चीज़ जो है वो हम Zoom के द्वारा एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और बहुत ऐसे ही ऑफिस के काम के लिए या फिर कलीसिया के काम के लिए इस्तेमाल होता है। Now, I want to give this idea to you that use this or use any other video calling app to call and spend time with and just talk with a few close friends from time to time. और यहाँ पे हम जो है वो प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि इसी प्रकार का कोई माध्यम से हम अपने गिने चुने जो करीबी दोस्त हैं उनके साथ भी हम जूम के द्वारा या किसी और माध्यम के द्वारा देख सकते हैं जहाँ पे उनको उससे समय बिताएं और उनके साथ बात करें। Yeah. Now there is this wrong substitute for good relationships. और यहाँ पे एक अच्छा विकसित संबंध जो है, रिश्ता जो है वो उसके बदले में एक गलत चीज आ रही है। And I'm referring to social media. और जिसका नाम है सोशल मीडिया। Because there we see so many people. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हम देखते हैं। But we don't know whether what they are showing on their profile is really the same as what they really are. क्योंकि हम नहीं जानते कि जो उन्होंने प्रोफाइल पे जो पिक्चर्स डाले हैं, जहाँ पे जिस तरह से वो पेश आ रहे हैं, वास्तव में वो वैसे हैं या नहीं। Right. When the pandemic had opened up a little bit, I remember I used to travel a lot in the bus. और बीच में जैसे हम जानते हैं कि जैसे महामारी जैसे हमें लगा कि ख़त्म हुई है और कुछ चीज़ें जो है वो खुल गई थी, तब मैं जो है वो बस में जाता था। And I used to see most people in the bus when they sit or even if they are standing, they are watching their cell phones. और बस में मैं देखता था कि बहुत से लोग जो बैठे हुए हैं या फिर खड़े भी हैं तो भी अपने मोबाइल में व्यस्त होते हैं। And on Instagram or some such app, they hardly are watching or looking or interacting with anyone. Hardly for a split second they will see one image or video and they are continuously scrolling. और जैसे इंस्टाग्राम देख रहे हैं तो कुछ पलों के लिए एक तस्वीर को देखते थे और तुरंत आगे बढ़ते थे। So maybe they know the people who posted that picture. और शायद जो है उन्हें पता था कि उस जिस व्यक्ति ने वो तस्वीर डाल दी थी उसे वो जानते थे। But this is not cultivating a relationship. परंतु उससे उनका रिश्ता जो है वो विकसित नहीं हो रहा है। Yeah. So this is what is needed. You need to cultivate relationships with family and close friends. तो यही बात अहम है कि जो रिश्ता है अपने करीबी दोस्त या फिर परिवार के साथ उसे हम विकसित करें। Yeah. Then we also need to keep this in mind about God's purposes and God's sovereignty over the whole world. साथ ही में हमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार से परमेश्वर प्रभुत्व संपन्न है और हर एक संसार की चीज उनके नियंत्रण में है।
Now, today, the world seems to be going out of control. भले ही हमें ऐसे लगता हो कि ये संसार जो है वो नियंत्रण के बाहर है, And many times the news sounds scary. कई बार जो समाचार हमारे पास आता है उससे हम डर जाते हैं, And these things are entering our mind, and it may make us more susceptible to emotional triggers. और ये चीज़ें जो है वो हमारे मन में प्रवेश करती है और जिसकी वजह से भावनात्मक रूप से हम उत्प्रेरक का शिकार बन सकते हैं। Yeah. Let us read Psalm 119, verse 89. भजन संहिता 119 का 89। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। Yeah. So the word of God is never going to change, although so many things are changing around us. और भले ही संसार की सारी चीज़ें जो है वो बदलती है, लेकिन परमेश्वर का वचन स्थिर रहता है। And in the word of God are written all the future plans that God has for us and for the whole world. और इसी वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने भविष्य के लिए योजना बनाई है इस पूरे संसार के लिए और हम सभी के लिए। So what we need to understand is nothing is going out of control for God. तो यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो परमेश्वर के नियंत्रण के बाहर है। There are no surprises for him. कोई ऐसा आश्चर्य की बात नहीं है परमेश्वर के लिए। And when we realize that when we are also in him, it helps us to cope with the changing environment. और जब हम ये अपने आप को स्मरण करते हैं और समझते हैं कि हम परमेश्वर के साथ हैं, तो बाहर की बदलती स्थिति से हमें तनाव नहीं महसूस होता। There is also something that we need to keep in mind about God's purposes for us personally. और एक चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का उद्देश्य जो है व्यक्तिगत रूप से हम सभी के लिए क्या है। Let us read Isaiah chapter 26 verse 3. यशायाह 26 का 3 में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। Yeah. This promise of perfect peace is for those whose minds are fixed on God. और ये जो पूर्ण शांति का अभिवचन है उन लोगों के लिए है जिनका मन जो है वो परमेश्वर के ऊपर है। And such a person has surrendered himself to God's will. और ये व्यक्ति वो है जिसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को सौंप दिया है। Now, if I've surrendered myself, then I can accept anything because I know that God has allowed it, and if He has allowed it, then He must have some good purpose for it. और जब मैं कहता हूँ कि मैंने अपने आप को परमेश्वर के नियंत्रण में छोड़ दिया है या फिर अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है, तो कोई भी चीज़ मेरे साथ क्यों ना हो, मैं उसे स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये परमेश्वर की इच्छा से अनुसार हो रहा है और इसमें परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है। Yeah, let us read Genesis chapter 22 verse 8. उत्पत्ति 22 का 8 पढ़ते हैं। इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। Yeah, here it says like this, that God will provide Himself a lamb. तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर जो है वो भेड़ का उपाय अपने आप ही करेगा। Whose need is it? ये किसकी जरूरत है? Abraham was the one who was supposed to offer a sacrifice. इब्राहिम को जरूरत थी जिसे ये होम बलि चढ़ाना था। But when Isaac asked him the question, he put it this way, that God will provide. लेकिन जब इसहाक जो है वो इब्राहिम को ये सवाल पूछता है तो वो उत्तर देता है कि परमेश्वर ये जो है वो इसका इंतजाम करेगा। So my need is his need. और ये कहता है कि मेरी जरूरत जो है वो परमेश्वर की जरूरत है। Now only a surrendered soul can speak like this. और ये केवल वही व्यक्ति कह सकता है जिसने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया हो। But there is perfect peace in this surrender. परंतु ऐसी स्थिति में जब उसने सौंप दिया है अपने आप को, तो वो पूर्ण शांति का जो अनुभव जो है वो कर सकता है। So these were certain things that we need to cultivate in our life, which will generally enhance our emotional health and make us strong and able to withstand these triggers.
तो ऐसी ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में विकसित करनी है, जिसकी वजह से हम भावनात्मक रूप से जो है वो स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। Yeah. Then let us think of a strategy or a way to help us to deal with some things which trigger us. अभी हम देखेंगे कि क्या उपाय हम कर सकते हैं या फिर क्या तरीके हैं जब ये उत्प्रेरक का शिकार हम बन जाते हैं तो उससे हम सुधर जाएं। So let us read Philippians chapter 4 verses 4 to 8. फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय 4 से 8 पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। Yes. Now let us apply these verses for emotional triggers. तो आइए हम ये वचन जो है वो भावनात्मक उत्प्रेरक के ऊपर लागू करें। When you are calm, when you are not triggered, you need to develop a set of truthful statements. और जब हम स्थिर हैं और किसी उत्प्रेरक से नहीं गुजर रहे हैं तो इस प्रकार की जो फलदायी वाक्य है या जो वचन है उसे हमें समझना है। Like for example, that woman can remind herself this, that sometimes there are some factors that make my husband delayed when he comes for work. That's not when he comes home from work. It's not a big deal. No need to worry about that. जैसे उदाहरण के तौर पे जो उदाहरण उस पत्नी का हमने लिया था जिसका पति देर से आया है, तो वो उस समय जब उसका पति जो है वो देर से आ रहा है तो वो अपने आप को समझा सकती है कि हो सकता है कि ऐसे कई सारे पहलू हो सकते हैं जिसकी वजह से उसे देर हो रही है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। So you make a list of such things in advance so that when the trigger happens, you can think these things. और तो ऐसे सारे जो चीज़ें हैं वो क्या कारण हो सकते हैं उसका लिस्ट हम बनाएं और जब वास्तव में वो हादसा हो या उत्प्रेरक हो उस समय इस लिस्ट को हम देख सकते हैं। We all have some verses or some songs that make us feel at peace. हम हमारे सभी के जीवन में हम कोई ऐसे गाने होते हैं या फिर कुछ वचन होते हैं जिसे पढ़कर या सुनकर हमें जो है वो शांति महसूस होती है। And when you get so you remind yourself of these verses or songs, and when you get triggered, then you read these or you listen to these. तो ये गाने या फिर ये वचन जो है वो हम स्मरण रखेंगे और जब ये उत्प्रेरक से हम गुजरते हैं तो ये वचन या गाने जो है वो हम तब याद करेंगे। Now here you also see the benefit of memorizing the verses or memorizing scripture. और यहाँ पे फिर एक बार हम ये फायदा देखते हैं कि वचन याद करने का क्या फायदा है। Yeah. And then when we are in this triggered state, what we need to do is just withdraw a little bit from that situation and pray to God about it. और जब हम इस उत्प्रेरक से गुजरते हैं तो उस परिस्थिति से हम कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को अलिप्त रखें और अकेले में परमेश्वर के साथ बात करें। Yeah. So if we do this, then our responses to these triggers will not be so intense. और अगर हम ऐसा कर पाते हैं या करते हैं तो हमारा प्रतिसाद इस उत्प्रेरक के प्रति जो है वो उतना ज़्यादा दर्दनाक नहीं होगा। Now, I gave the example, suppose I'm a person who gets triggered when I see that poor people are cheated. और जैसे उदाहरण पे तौर पे हमने देखा था कि जब गरीब लोगों के साथ उन्हें फंसाया जाता है तो किस प्रकार से मुझे गुस्सा आता है। So I need to tell myself this truth, that God is a God of justice, and if anyone does that, God is going to judge that person. तो इसीलिए जब ऐसी चीज़ कोई देखता हूँ मैं तो मुझे स्मरण दिलाने की ज़रूरत है कि परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है और जो अन्याय उस व्यक्ति के साथ हो रहा है उस व्यक्ति को परमेश्वर ही है जो न्याय दिलाएगा। Yeah.
So when I get such news, okay, I remind myself of this truth, and then I don't feel so bad. तो इसीलिए जब ऐसी कोई समाचार में मुझ तक पहुंचते हैं तो इसके बजाय कि मैं उत्प्रेरित हो जाऊं, मैं जो है वो परमेश्वर के इस वचन को याद कर कर स्थिर रह सकता हूं। Yeah. So today we studied the definition of emotional triggers. तो आज हमने परिभाषा देखी कि भावनात्मक उत्प्रेरक क्या है। We studied that we don't have to feel guilty about it, but we need to move on from it. God does not want us to, live and behave in this way. ये भी हमने देखा कि हमें अपने आप को दोषी नहीं ठहराना है, लेकिन परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम इसे भूलकर आगे चले। And we saw the example of the Lord Jesus Christ, how he experienced feelings, but they did not overpower him. आगे हमने मसीह का उदाहरण देखा कि किस प्रकार से उन्हें भी भावना थी, पर उन्होंने कभी वो भावना अपने ऊपर हावी नहीं होने दी। And then we studied some ways to enhance our emotional health. और फिर हमने कुछ तरीके देखे जिससे हम भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं। Spend time with yourself, spend time with nature. अपने आप के साथ समय बिताएं, निसर्ग में समय बिताएं। Spend time alone with God, spend time with family. अकेले परमेश्वर के साथ समय बिताएं, परिवार के साथ समय बिताएं। Remember God's purposes for the world, they are in control. God's purposes for me also are in control if I am surrendered myself to God. और स्मरण करें कि अगर मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूं तो परमेश्वर पूरे संसार की योजना जो है वो उनके नियंत्रण में है, और मेरे जीवन की योजना भी जो उनकी है उनके नियंत्रण में है। And be ready with good thoughts, with wholesome thoughts, with verses or songs, with prayers when we are triggered. और अपने आप को हमेशा तैयार रखें, अच्छे वचन, अच्छे विचार, अच्छे गाने जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस उत्प्रेरित स्थिति में। Yeah, may God help us to implement these things in our life and live wholesome, good, joyful lives for His glory. परमेश्वर करे, यही प्रार्थना है कि ये चीज़ें जो है वो जो आज हमने सीखी वो हम स्मरण कर सके और इसका उपयोग कर सके परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन में।